Hello my dear students. In this video, we are going to continue the practice set 1.1 of our geometry. Practice set 1.1 सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमने किए थे और उसमें कुछ सम्स रिमूव किया गया हुआ है पोर्शन से, तो उसको मैंने अटेंड नहीं किया. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई, मतलब होता है अगर ए का कोऑर्डिनेट, ए जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स मान लिया एंड दैट ऑफ मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट वाई माना है, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए और बी. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. ए का कोऑर्डिनेट को एक्स माना है, बी का कोऑर्डिनेट को वाई माना है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दिया. एक्स का वैल्यू जो है वो ए का कोऑर्डिनेट है, वाई का वैल्यू जो है बी का कोऑर्डिनेट है. सो लेट्स स्टार्ट द सम. सो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स है, एक्स का वैल्यू 1 है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी का वैल्यू वाई दिया हुआ है, वी का कोऑर्डिनेट वाई दिया है, तो वाई का वैल्यू कितना है 7. ओके, अभी ये दोनों नंबर में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है कि 1 बड़ा, 7. सो 7 इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बिगर वैल्यू, सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द बिगर वैल्यू. छोटे नंबर को बड़े नंबर से, यानी ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दोज distance between those 2 points. Distance between A and B is equal to greater coordinate minus smaller coordinate. Therefore, distance between A and B is equal to 7 minus 1 is 6, that much units, 6 units. Now the next question, x का value 6 और y का value minus 2. Coordinate of point A, that is x, how much 6. Coordinate of point B, that is y, value is negative 2. Which one is greater? 6 is greater than negative 2 because all the positive numbers are greater than negative numbers. Now distance between A and B, distance between the points A and B equals greater coordinate minus, ये देखो बड़ा coordinate minus, now the smaller coordinate. Smaller coordinate itself has a sign of negative, so it should be put in a bracket. So 6 minus minus 2. The calculation is 6 negative negative. When two signs come together without any number in between, we have to make those two symbols या two signs into a single sign. नेगेटिव नेगेटिव, जब दो लाइन पास पास में है तो हमें उसको मिलाकर एक सिंगल साइन करना है. दैट मीन्स वी हैव टू मर्ज द साइंस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये दोनों साइन चला गया, नाउ 2. Therefore answer is 6 plus 2 is 8. So final answer we'll write, I'm writing over here. Therefore distance between A and B, distance between point A and B equals 8 units. Okay. Next question हमारा x is equal to minus 3 and y equals 7. So first of all we'll write in the same way coordinate of A, I'm going little fast, equals x which is equal to negative 3, coordinate of B that is y which is equal to 7. So therefore which one is bigger? 7 is bigger than negative 3. Therefore 7 बड़ा minus 3 छोटा. So distance between points A and B equals greater minus smaller. Again here double sign. So I am doing the calculations here, means putting equals here because I don't have place down. 7 negative negative positive and 3, and the final answer will be 7 plus 3 is 10. So answer distance between A and B equals 10 units. So this was the third sum of that section. The fourth question is x is equal to minus 4 and y is equal to minus 5. So first coordinate of point A is x which is equal to minus 4, coordinate of point B equals y which is equal to negative 5. And now compare these two numbers, which is greater and which is smaller. नेगेटिव साइंस डालेंगे तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है रियल में. सो नेगेटिव 4 इज ग्रेटर देन नेगेटिव 5. नेगेटिव 4 बड़ा होता है, नेगेटिव 5 छोटा. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन point A and B equals greater value, put it in a bracket since it has a negative sign, minus smaller value equals negative 4 minus minus plus 5. Here
क्या करना होगा, डिफरेंट साइन से, डिफरेंट साइन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 4 गया 1, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज पॉजिटिव, सो वैल्यू इज 1 एंड द फाइनल आंसर इज distance between A and B equals 1 unit. Okay, and that section also is cleared now. Sorry, one more sum, fifth sum is remaining, fifth sum. So the fifth question is x value negative 3 and y's value is negative 5. Coordinate of point A is equal to x, which is negative 3, and then coordinate of point B, coordinate of point B. So दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिया, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट. नाउ कंपेयर विच इज बिगर, ऑब्वियसली नेगेटिव 3 इज बिगर दैन नेगेटिव 6. नेगेटिव 3 बड़ा है, नेगेटिव 3 इज ग्रेटर दैन नेगेटिव 6. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल्स ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, which is equal to negative 3, negative, negative, positive, and 6. Since the signs of the numbers are different, we have to subtract them. 6 minus 3 is 3. Now we have to give a sign to the answer. Which sign will be given to the answer? The sign of the bigger one. 6 is bigger. And here I told 3 is bigger, and here I am telling that 6 is bigger. Means while giving the sign, we should not consider the ओरिजिनल वैल्यू. देखो यहाँ पे वैसा भी 6 बड़ा है क्योंकि 6 का साइन पॉजिटिव भी है, पर यहाँ पर साइन नहीं देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है. मीन्स जस्ट अवॉइड, just ignore the symbol and check only 3 and only 6, that you check, and which is bigger, 6 is bigger, and what is the sign of that bigger number, plus that plus sign will be given here. And normally we don't give a positive sign to the number. Without giving positive sign, everybody knows that it is a positive number. Okay, positive number को sign देने की इतनी ज़रूरत नहीं है. So answer is 3. So final answer we have to write is, therefore I am writing the final answer here, distance between point A and B equals 3 units. Okay, so that was that answer, and now the section is finished. Sorry, again I got confused. Sixth sum also is remaining. Okay, sixth sum, I think that is the, let me check. Yes, that is the last of this section, sixth sum. So let's do that last sum. The sixth question is x is equal to 4 and y is equal to negative 8. So first we wrote coordinate of A and then coordinate of B. Okay, then which is bigger? यहाँ पर कंपेयर करने के टाइम पे we have to see the original value. That means we should consider the sign. This is positive 4 and this is negative 8. Which is bigger? Positive 4. So positive 4 is greater than negative 8. Now distance between A and B equals greater value minus smaller value. Greater coordinate minus smaller coordinate. Which is equal to 4, negative, negative, positive 8. Since both the signs are same, see here, the sign of 4 is positive and sign of 8 also is positive, then we can add it, adding we get 12. And the sign of the bigger one, which is bigger here, 4 or 8. And here when we compare, for giving the sign of the answer, we should see only the number, not consider the negative or positive signs. Okay, avoid or ignore the positive sign and then check which is greater. 8 is greater, what is the sign of that positive sign? Put a positive sign, otherwise no need of putting positive sign. Therefore distance between A and B is 12 units. 12 units. So this is the answer of that question. Now the third question is, means next section उसी practice set के, from the information given below, नीचे दिया हुआ information में से find which of the point is between the other two. कौन सा point दूसरे दोनों के बीच में है. That means it is called betweenness. If the points are not collinear, अगर points collinear नहीं है, state so, वो भी बता दो. दैट मीन्स कोलिनियर नहीं है, इस तरह बता दो. स्टेट सो मीन्स जैसा है वैसे बता दो. तो सम करने से पहले यहाँ पे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं. समझो इधर एक पॉइंट, ये देखो इतना एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है सी और यहाँ पर एक पॉइंट बी है. ये सी कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं भी, सेंटर में या इधर इधर किधर भी. तो इस टाइम पे हम बोलेंगे, यानी ये तीनों लाइन्स पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जाता है, तो
तो हम बोल सकते हैं कि ए और सी और बी या फिर ए और बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि उनसे वो तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है। अगर उसके ऑपोजिट अगर ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है और सी पॉइंट इधर है, देन वी कैनॉट ड्रॉ अ स्ट्रेट सिंगल लाइन थ्रू दिस। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन इनके तीनों के बीच ऊपर से है ना, तीनों को मिलाकर ड्रॉ नहीं कर सकता। देन हियर वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। ओके तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब इफ वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट सिंगल लाइन through three or more points, then all those points are called collinear points. अगर लाइन कोलिनियर है, सॉरी पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एक पॉइंट बीच में होगा, बराबर ना। दैट मीन्स पॉइंट सी इज बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट सी ए और बी के अंदर है, इनसाइड है या बीच में है। तो ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बिटवीननेस। बिटवीननेस यानी बीच में होने का प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करूँ, ए से बी जोड़ सकता है, इधर अलग जोड़ सकते इधर अलग, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना, सिंगल स्ट्रेट लाइन। और तीनों में से कौन किसके बीच में, नोबडी कैन से, बराबर। सो देयर इज नो बिटवीननेस, नो बिटवीननेस इन दिस केस। यहाँ पे कोई बिटवीननेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिटवीननेस है। दैट मीन्स व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिटवीननेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस एक्सिस्ट। एक्सिस्ट मतलब होता है। ओके अगर लाइन पॉइंट्स कोलिनियर है तो बिटवीननेस होता है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है, देन देयर डज नॉट एक्सिस्ट बिटवीननेस। बिटवीननेस का काम वहाँ पर या प्रॉपर्टी वहाँ पर होता नहीं है। ओके तो हम देखो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट है, ये केस में ए बी और सी तीनों कोलिनियर है और बिटवीनस है तीनों के बीच में, क्योंकि कोलिनियर है। और ये बिटवीनस को किस तरह लिखेंगे, ए डैश सी डैश बी। दैट मीन्स सी इज बिटवीन ए एंड बी। अगर बी इधर होता तो हम क्या लिखते थे, ए डैश बी डैश सी। इसको ए डैश सी डैश बी को उल्टा भी लिख सकते हो, बी डैश सी डैश ए। ये आगे पीछे का लास्ट का दोनों है, एंड के जो दो पॉइंट्स है उसे हम यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो पॉइंट बीच में कहीं तो है उसे सेंटर में डालना है। ठीक है तो ये इतना पार्ट तो हमारा क्वेश्चन के अंदर नहीं था, आई एम सॉरी, क्वेश्चन के अंदर नहीं था ये इतना पार्ट। तो ये जस्ट आपको बिटवीननेस को एक्सप्लेन करने के लिए किया। नाउ लेट्स गो बैक टू द सम। सो क्वेश्चन क्या था, तीन पॉइंट्स के डिस्टेंस मतलब पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिए हुए हैं और फाइंड विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, यानी कौन सा पॉइंट दूसरा दो के बीच में है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं तो बिटवीन नहीं होता। बिटवीननेस अभी हमने देखे थे, जहाँ पर कोलिनियर होता है पॉइंट्स वहाँ पर बिटवीननेस होता है। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर देयर इज नो बिटवीननेस। ओके सो या वो बताना है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो वी हैव टू स्टेट, सो दैट वी हैव टू स्टेट दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. So the first question is distance between P and R 7, distance between P and Q is 10, distance between Q and R is 3. So we have to check whether P, R and which letter common, which point और बाकी बचा Q. ये तीनों पॉइंट, पॉइंट P and point Q and point R, ये तीनों कोलिनियर है या नहीं। If the points are collinear, अगर points collinear है तो आपको क्या करना है, we have to write the betweenness. That means which point is between which other two points. So first of all let us write the values whatever we have given, the distances of the points. So the distances between the points are given. Distance between P and R is 7 units. Distance between points P and Q is 10 units. Distance between points Q and R 3 units. So distance between, इतना हमें जो दिया वो लिखे रखा। अभी उसके बाद क्या करना है हमें, ये दोनों में से छोटा कौन सा है, ये सब दिया हुआ है। ओके ये दोनों में से छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इज 10, उसको छोड़ दो, बाकी दोनों लो, बाकी दोनों मतलब 3 और 7, 7 और 3 को लो। ओके 7 और 3 को मतलब कौन है, P और R का डिस्टेंस और Q और R का डिस्टेंस है। Therefore we are doing the addition of the smaller distances, means जो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस में छोटे छोटे जो दिया वो ऐड करेंगे। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन P एंड R प्लस
द छोटा वाला कौन सा है फिर, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिला 10, सॉरी इसका डिस्टेंस कितना है 7 प्लस इसका डिस्टेंस कितना है 3। ओके, therefore once again we will write the same thing, distance between P and R plus same thing distance between Q and R equals what we are getting 10। okay, so हमने छोटा जो डिस्टेंस वाले जो मतलब छोटे जो डिस्टेंस थे वो दोनों ऐड किया, ऐड करने पे हमें 10 मिला। और ये तीनों में से बड़ा कौन था उसको पॉइंट फर्स्ट डालो, और दोनों ऐड करके जो मिला उसको पॉइंट सेकंड डालो। ओके, तीनों वैल्यू हमने लिखे जो दिया हुआ, उसमें से सबसे बड़ा वाला जो है उसको पॉइंट फर्स्ट डालो, और बाकी दोनों को ऐड किया तो ऐड करो यहाँ पर, उसका आंसर वैसे ही लिखो और उसको सेकंड करो। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाले देखो 10 मिला है वैल्यू पी क्यू का डिस्टेंस, सेकंड वाले देखो पी आर और क्यू आर का डिस्टेंस प्लस किया तो 10 मिला, बोथ आर 10 बराबर। तो हम लिखेंगे दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड ऑल्सो विल बी इक्वल, दैट मीन्स वी कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इक्वल्स, देखो ये वाला इक्वल्स ये वाला, इक्वल्स डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। समझा है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर points P, Q and R are collinear, therefore points P, Q and R are collinear, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, आर कोलिनियर, पॉइंट्स P, पॉइंट Q, पॉइंट R तीनों कोलिनियर। पॉइंट्स करके लिखा इसलिए हम यहाँ पे बार बार पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, अगर पॉइंट लिखे होते तो हर पॉइंट के पहले आपको पॉइंट पॉइंट लिखना पड़ता था। पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो बिटवीननेस होता है ना। सो द नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, रिलेशन ऑफ बिटवीननेस एक्सिस्ट, अदरवाइज वी कैन राइट देयर एक्सिस्ट बिटवीननेस। चलो ऐसा सिंबल में लिख देते हैं, देयर एक्सिस्ट, एक्सिस्ट EXISTS एक्सिस्ट बिटवीननेस, यहाँ पर बिटवीननेस होता है, देयर एक्सिस्ट बिटवीननेस। अभी कौन सा पॉइंट किसके बीच में है वो कैसा देखेंगे, सबसे बड़ा वाला कौन थे यहाँ पर है ना, ये P और Q के बीच में डिस्टेंस जो था वो सबसे बड़ा है अकेला 10, तो ये दोनों पॉइंट दूर मतलब एंड में होगा, और इसमें नहीं जो पॉइंट है वो कौन है, R है, R बीच में होगा। सो वी कैन राइट P डैश R बीच में होगा Q, P डैश R डैश Q। ओके, सो ये कंसेप्ट को आपको वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अभी यहाँ देखो पी आर एक सेगमेंट है, उस सेगमेंट के बीच में Q पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुआ, पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। ओके, P से लेकर Q का डिस्टेंस समझो 2 है, और Q से लेकर R का डिस्टेंस समझो 6 है, और P से R तक का डिस्टेंस आप बताइए, P से Q कितना है 2 है, और Q से R जो है वो कितना है 6 है, तो आप बताइए P से R कितना होगा, P से लेकर R तक कितने होंगे, ये 2 और ये 6 मिला देंगे तो होगा, दैट मीन्स इट विल बी 8। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होंगे, यहाँ पे R होगा। ओके, वी कैन नॉट ड्रॉ अ सिंगल स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट से हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बना नहीं सकते, तो आपका PQ का लेंथ होगा समझो एक 2 सेंटीमीटर, और QR का लेंथ हो गया समझो 3, तो आपको क्या लगता है PR जो है 2 और 3 मिलाकर होगा यानी 5 होगा, ये नेवर, इसका वैल्यू कुछ और होगा, ये दोनों मिलाकर ये नहीं होगा। ओके, ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये दोनों मिलाकर तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा दो स्मॉल पीसेस मिलकर अगर बड़ा पीस मिलना है तो क्या होना चाहिए, पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसा हमारे पास ये तीनों वैल्यू दिया, सबसे बड़ा वाला PR है, ओके दैट इज 8, इसको मैंने पॉइंट फर्स्ट डाला, दोनों छोटे को मैं ऐड करने जा रही हूँ PQ प्लस QR इज इक्वल टू मुझे कितना मिला 2 + 6 मिला विच इज इक्वल टू 8।
बराबर, ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। अभी ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को आप कंपेयर करो, दोनों में वैल्यू क्या मिला है, 8 मिला है, सेम मिला है। इसका मतलब पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, बराबर। अगर ऐसा है तो ज़रूर क्यू बीच में होगा ना बच्चा, क्यू बीच में है क्योंकि पी आर, पी और आर एंड में होगा, समझ रहे हो। और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर भी होंगे क्योंकि ये और ये प्लस करके अगर ये मिलना है तो पॉइंट शुड बी कोलिनियर। पॉइंट कोलिनियर नहीं तो इस तरह कंडीशन हो जाएगा, ये और ये मिलकर ये नहीं बनेगा। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी वी अप्लाइड देयर। अभी जो सम किया था वो इसमें यही प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। दो छोटे पीसेस को ऐड करके अगर बड़ा पीस मिलता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और उसमें से सबसे लंबा, सबसे बड़ा सेगमेंट कौन होगा, स्टार्ट टू एंड होगा, तो स्टार्टिंग और एंडिंग का नाम उधर मिलेगा। और बाकी जो बचा हुआ नाम है दैट इज योर क्यू। क्यू इज बिटवीन पी एंड आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी डैश क्यू डैश आर। But in the question we solved just now, have has the which point in the middle, R in the middle. So in that question we have written P dash R dash Q क्योंकि PQ was the biggest या longest side. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन R एंड S 8, डिस्टेंस बिटवीन S एंड T 6, डिस्टेंस बिटवीन R एंड T 4। सो जो हमें मिला वो लिखो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली सोल्यूशन कर सकते हैं। इसका लेंथ 8 है, इसका 6 है और इसका 4 है। कौन सा सबसे बड़ा है उसको पहला लिख दो, कौन सा है। थोड़ा सा स्टेप्स छोड़ दिया मैंने। पहले सम में हमने क्या किया था, ये तीनों वैल्यू जो मिला था उसको उठा के पहले लिख दिए थे। पर यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो सबसे बड़ा वैल्यू उसको पहले लिख देते हैं, मतलब डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन आर और एस कितना है बेटा, 8। और उसके बाद हमारा दो छोटे हैं 6 और 4, उसको ऐड करना है। डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन आर टी इक्वल्स क्या होगा, एस टी का डिस्टेंस 6 है, आर टी का डिस्टेंस 4 है। अगेन वी आर राइटिंग डिस्टेंस बिटवीन एस टी plus distance between R and T equals what we are getting 10। oh, so ये पॉइंट को फर्स्ट और ये सेकेंड पॉइंट इस तरह बना दिया। अभी कंपेयर करो सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को, कंपेयरिंग या फ्रॉम कंपेयरिंग वी कैन राइट कंपेयरिंग फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को कंपेयर आप करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन आर एस, ए फर्स्ट पॉइंट वाला, और इक्वल है क्या इसको, बिल्कुल नहीं है, तो वी विल राइट नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला पॉइंट लिख रही हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी। समझा है। देखो फर्स्ट वाले को देखो तो आर एस का डिस्टेंस 8 है, सेकेंड वाले पॉइंट को देखोगे तो एस टी का डिस्टेंस और आर टी का डिस्टेंस को प्लस करने में 10 है, हमें मिलना चाहिए था 8, तभी तो पॉइंट्स कोलिनियर होते थे, लेकिन यहाँ पे 10 मिला, तो हमने यही लिखा कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, या फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का लेंथ या टोटल सेम नहीं है, विच आर दे आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, और इतना लिखने पे हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनल आंसर हमारा इतना ही है। देयरफॉर पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स है, आर है, एस है और टी। पॉइंट्स आर, एस एंड टी आर not collinear, non collinear, otherwise you can write not collinear, they are not collinear, ऐसा भी लिख सकते हो, otherwise they are non collinear, non collinear points। तो एक बार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिख दिया तो उसके बाद बिटवीननेस का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बिटवीननेस होता ही नहीं है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बीच में। सो दैट वाज द सम नंबर सेकंड। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस बिटवीन ए बी दिया है 16 और डिस्टेंस बिटवीन सी ए दिया हुआ है 9 और डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी दिया हुआ है 7। इसको भी डायरेक्ट हम करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये तीनों वैल्यू में तीनों डिस्टेंस जो दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 16, वो पहले लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल 16 और इस पॉइंट को हमने नंबर 1 दिया। और उसके बाद बाकी दो जो बचा हुआ है सी ए और बी सी दोनों का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सी ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी इस इक्वल टू सी ए का 9 और बी सी का 7 ऐड करना है। ऐड करके नेक्स्ट लाइन में हम लाइन में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इक्वल्स, ऐड दिस two numbers together and we are getting 16 and this point will be considered as point number
Now compare these 2 points. Comparing point 1 and point 2, we are getting both the values are same, isn't it? Distance between AB 16 and the addition of your sum of these two distance is also equal to 16. दोनों 16 है तो we can write distance between AB equals. यहाँ पे पहले वाले समय हमने नॉट इक्वल लिखे थे जहाँ पर इक्वल नहीं मिला, तो यहाँ पे हमें इक्वल लिखना है. तो ये डिस्टेंस इनको इक्वल है. अगर इक्वल है तो हम लिखेंगे पॉइंट ए बी और तीसरा पॉइंट इसमें सी. इधर भी ए बी सी तो रिपीट है, तीन ही पॉइंट है. पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स है. उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो देयर एक्सिस्ट बिटवीन अस. सो वी हैव रिटन देयर एक्सिस्ट बिटवीन अस. सो फाइनल आंसर हमें लिखना है कि कौन किसके बीच में है, कौन से पॉइंट के बीच में कौन सा पॉइंट है. तो उसके लिए हमें सबसे बड़ा वाले को देखना है. ये भी बड़ा वाला मतलब वो एंड में रहेगा, स्टार्ट टू एंड रहेगा. ये भी तो कौन बीच में है, सी बीच में है. सो द डिस्टेंस बिटवीन अस विल बी रिटन एज ए डैश. सी बीच में होगा, बी यहाँ ए डैश सी डैश बी. दैट मीन्स सी इज बिटवीन पॉइंट, सी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ओके. Now fourth, fifth and sixth sum of this section is removed, and the next one is the section number 4, only that. And fifth section also is removed. Two more sections we have to do. Okay, that we will do in the next video. Bye bye.